Today we are going to start a new chapter, which is, as you can see from the screen, cell. And what are we going to study? So first of all, we will study about the cell. We will see its shape, size, what are the theories related to it, and who has discovered the cell, and for the first time, who has discovered living cell, and everything in this. Okay, so first checklist will be this, an overview about the cell, what are they called and why are they named as cell. Then structural outline of the cell will be there, cell theory will be there, all about prokaryotic cell and what are the components that are present in a prokaryotic cell. Then we will study about eukaryotic cell, and study about this one will include the components, cell membrane, endomembrane systems, mitochondria, nucleus, chromosome, everything. Okay, so in this, whatever is related to cell, we will study all those points. Okay, so I'm going to start with the chapter itself. Cell, what does this cell have? So begin. First of all, my first question to you is, what is cell? How can you define a cell? What is cell? It is the first and most important question to everyone. In your Cell language, is the, what is cell? Hmm. cell is the basic structure and functional unit of living organism. Yes, very good. It is the basic structure and functional unit of living organism. See, cell तो वायरस का भी है, बट until and unless जब तक वो लिविंग होस्ट के पास या लिविंग चीज के पास नहीं जाता, that cannot become a living. तो सेल क्या है? It is the basic requirement of anything to be living. जब तक सेल है, सेल के कितने भी कंपोनेंट हो जाए, लाइक कि अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया मिले या सिर्फ क्लोरोप्लास्ट मिले या सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिले, देन those things will not be called as a cell. सेल का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि एक कंप्लीट सेल होना चाहिए. ठीक है, सेल होने का मतलब ही है कि लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है. सो सेल इज व्हाट? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बीस थ्योरी की सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, ये सब तो बाद में आया है. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एंड नाउ सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो पहला पॉइंट कि सेल बेसिक है और सारी ही की सारी चीजें जो भी एग्जिस्ट करती हैं लिविंग फॉर्म में, all those things are composed of cell and its units. Second main point, it is the structural and functional unit of life. Each and every cell are capable of performing their own functions. ठीक है, and even a single cell means if we are talking about any unicellular cell like this unicellular cell, that unicellular cell is also capable of what? Capable of performing every activity. Performing every activity. Every activity means what? Like digestion, respiration, food eating, engulfing, digestion of food, everything which a multicellular organism perform, even a single cell also can perform. Example में we can say bacteria, amoeba. So ये लोग क्या है? ठीक है, example में amoeba. These are composed of one cell only, but still they are capable of performing so many functions. Means each and every function what a living being can perform. इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोला गया है. नेक्स्ट पॉइंट, सेल का डेफिनेशन हो गया कि व्हाट अ सेल इज कॉल्ड, बट वी हैवंट सीन कि एनीथिंग लेस देन अ सेल कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सेल. सो दिस पॉइंट कैन also be written as anything less than a cell can't be, okay, let me write it like this. Anything less than a cell doesn't ensure independent living. And now why I'm writing independent living ki because only a cell can perform every function. अगर सेल से कम है, like it is having only DNA या it is having only nucleus या it is having only one or two cellular organelles in it, so that are not called be as cell because these cells are capable of performing each and every function. अगर वो पूरा fully function नहीं कर रहा है, पूरा structure नहीं develop कर रहा है, तो वो सेल नहीं कहलाएगा. मीन्स दोज लिटिल टाइनी things cannot be called as a cell because they are not forming the basic idea of cell. Okay, now एक word और, inanimate things. Inanimate things मतलब inanimate things means non living things.
non-living things. NCERT has used this word inanimate things. Inanimate things का मतलब ही है non-living things कह लो या तो non-cellular, because virus is also what? A cell only when it attaches to its host. जब तक host के पास नहीं है, whether virus is in air, virus is in टेबल, चेयर, कहीं पे भी वायरस का कोई पार्टिकल है, वो नॉन लिविंग है तब तक जब तक वो किसी लिविंग पार्टिकल से अटैच नहीं हो जाता। उससे पहले तक वो क्या है? इनएनिमेट है। बट जैसे ही वो किसी होस्ट के साथ अटैच होता है, दैट वायरस बिकम्स अ लिविंग सेल। सो उससे पहले इनएनिमेट थिंग्स क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन सेलुलर थिंग्स। देन starting about organism. So on the basis of what? Number of cells क्या होते हैं? यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं और मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। सो organisms are of what? Two kinds. First one is unicellular, another one is multicellular. This cell chapter is very easy, just you have to remember few or more points. किसके बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं? On the basis of number of cells. नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे क्या है? यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं और मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं। तो यूनी का मतलब ही क्या है? सिंगल। सेल्स, सेलुलर मतलब वही चीज, सेल्स। अब यूनिसेलुलर सेल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? दीज आर व्हाट? मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, मेड ऑफ सिंगल सेल्स। एंड एग्जांपल्स में यू कैन राइट अमीबा, बैक्टीरिया, पीपीएलओ। ओके। देन मल्टीसेलुलर, मल्टी itself means what? many, and cellular means cell. So ये लोग क्या होते हैं? made of several cells. In examples में higher plants and animals. Higher plants and animals. Any doubt till here? What two different kind of organism and what a cell is called and what are its basic knowledge? Okay. Any point that you are not able to understand about this cell? No, ma'am. Okay. So अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? Discoveries which are related to cell. Most important point और questions आते हैं इससे. So discoveries that are related to cell. Discoveries related to cell. पर तीन साइंटिस्ट का नाम दिया है एनसीईआरटी में. So we are going to study about those three scientists only. First one is what? Robert Hooke. सेकेंड साइंटिस्ट हैं एंटोनी एंटोनी वैन ल्यूवैन हुक. एंटोनी वैन ल्यूवैन हुक. ओके, यस. Then the third one is Robert Brown. With all these three scientists, and neat questions have been asked. Who discovered the cell, or who has seen cell for the first time? Then who has seen living cell for the first time? Then who has discovered the nucleus? So Robert Hooke and Robert Brown में बहुत confusion होता है, and most of the students make mistake here. Robert Hooke has discovered cell for the first time. ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सेल डिस्कवर किया था. लाइक ओल्डर डेज क्या होता था ना, जैसे अभी हमारे पास छोटी छोटी चीजों को शौक होता है तो हम उसको अपने घर में रख लेते हैं, या फिर हम अपना जुगाड़ लगा के उसको घर पे छोटा मोटा बना लेते हैं. ठीक है, तो अर्लियर दीज काइंड ऑफ साइंटिस्ट यूज्ड टू हैव देयर ओन माइक्रोस्कोप एट होम. तो वो लोग क्या करते थे? किसी भी चीज को कभी भी क्या करते थे? माइक्रोस्कोप के अंदर रखते उसको ऑब्जर्व करते रहते थे. सो दिस रॉबर्ट हुक वो क्या करते थे? कभी भी उनको कोई भी चीज दिख गया तो वो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख लेते थे. लाइक कभी कोई पेड़ का तना ले लिया, कभी कोई बोरा ले लिया. सो वन टाइम इन हिज स्टडी ही यूज्ड द कॉर्क. तो उन्होंने जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो व्हाट ही ऑब्जर्व फर्स्ट, उनको कुछ डेड सेल दिखे थे. ठीक है, एंड वो डेड सेल्स क्या थे? वो डेड सेल्स उनको हनी कॉम की तरह दिखे थे. उनका स्टेटमेंट क्या था कि दीज डेड सेल्स आर लाइक हनी कॉम. सो ऐसे थे. हनी कॉम मीन्स की जो बर्रे या मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उनको बोलते हैं. तो दीज आर समथिंग लाइक दिस ना, हनी कॉम का स्ट्रक्चर. हैव यू सीन एनी ऑफ दीज? Yes, ma'am. सो उनको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, दिस रॉबर्ट हुक, व्हेन ही ऑब्जर्व, तो ही ऑब्जर्व दीज काइंड ऑफ सेल अटैच्ड टू each other. Okay, so these are cells. These are what? These are somewhat like cell structures, plant cells. See, और ये क्या है? बाहर का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? These are cell wall. तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में कहाँ देखा था? ऑब्जर्व्ड इन हनीकॉम्ब, ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क सेल्स,
कॉर्क के सेल्स को लिया था उन्होंने. कॉर्क इज व्हाट? अ बार्क फ्रॉम द ट्री. ठीक, कॉर्क सेल, एंड गिवन, yeah, stated that, and stated that they looks like honeycomb structure. honeycomb structure. ठीक, उनका ये स्टेटमेंट था आफ्टर द ऑब्जर्वेशन. और उनमें उन्होंने और क्या देखा? व्हाट हैव ही सीन फर्दर? ही ऑब्जर्व टू थिंग्स. वन वाज डेड सेल्स. और ये डेड सेल्स क्या थे? दी डेड सेल्स वर cell wall, which is the outermost covering of what? Plant cells, no? Outermost covering of plant cells are cell wall. After that, plasma membrane will come. Observed cell wall. Okay, क्योंकि cell wall mostly mechanical issues या mechanical का काम करते हैं. So they are the outermost layer, and they prevent the innermost layer of the plant cells from breaking. So they provide what? Support. Therefore they are dead. अब ये डेड सेल्स कौन से थे? सेल वॉल्स के थे. सो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व तो किया सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ही ऑब्जर्व्ड अ डेड सेल, नॉट अ लिविंग सेल. सो वी कैन राइट हियर आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ऑब्जर्व सेल. ओके, नीचे ही लिख देते हैं. Robert Hooke observed a dead cell for the first time. For the first time. Then Robert Brown, what does he observe? He has observed, or you can say discovered, nucleus for the first time. And मैंने और क्या लिखा था? एंटोनी वैन लीवन थी ना? एंटोनी वैन लीवन. So he observed what? Living cell for the first time. और इन्होंने लिविंग सेल फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था? As I told you earlier कि these scientists are very fond of seeing each and everything under the microscope. So Liu and Hooke has seen these living cells for the first time in the rainwater. उन्होंने क्या किया? रेन वाटर को लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा. तो similarly रेन वाटर लिया. Sometimes he used eaten food also, and sometimes he used many living cells of plant leaf also. So he used many things. He even used his cheek layers of the cheek. तो उन्होंने ये सारी चीजें जब ऑब्जर्व की अंडर द माइक्रोस्कोप. सो व्हाट ही ऑब्जर्व, कि उन्होंने कुछ छोटी छोटी चीजें मूव होती हुई दिखाई दी. एंड दैट्स हाउ ही सेड कि these cells are composed of something and they are moving. अब बारिश के पानी में क्या? माइक्रोब्स हैं. माइक्रोब्स विल obviously move. So microbes are what? The first kind of living cells. तो observed by whom? Anthony Van Leeuwenhoek. If any question comes like who observed the cell or who discovered the cell for the first time and not mention about dead or living, you will always write his name, Robert Hooke. But if it is mentioned about who observed the living cell for the first time, you will always write his name, Anthony Van Leeuwenhoek. Okay? Any doubt till here about the discoveries related to it? मैम एक बार फिर से इसे रिपीट कर दीजिए. Okay. So see, for the first time, a cell has been discovered by Robert Hooke. उन्होंने क्या किया था? He observed a cork cell under the microscope, and उन्हें वो observation कैसा दिखा था? Like a honeycomb. उन्होंने बोला कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं डेड सेल्स वो कैसे हैं? हनीकॉम के तरह हैं. और from this only he saw what? He saw dead cells which are made up of cell walls. क्योंकि ये डेड सेल वॉल्स थे, उस टाइम उन्हें नहीं पता था. सो उन्होंने नाम क्या दिया था? सेल्यूला फॉर द फर्स्ट टाइम. और नेम इसको क्या दिया था? एंड नेम्ड. मैम ओनली रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लीवेनहुक में मतलब डिफरेंस. रॉबर्ट हुक डेड सेल्स में ऑब्जर्वेशन लिए थे, लेकिन ये पहले सबसे पहले सेल पढ़ने वाले और सेल का नाम देने वाले रॉबर्ट हुक ही हैं. ओके, बाद में ये एंटोनी लेवेनहुक जब सेल हो गया था कि हाँ कुछ तो है, सेलुलर समथिंग काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर प्रेजेंट, तब इन्होंने हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया. एंड देन ही ऑब्जर्व कि समथिंग इज देयर दैट आर मूविंग इन वाटर एंड इन फूड. सो he saw some bacteria and some other microbes which are present in water, food in general. So इस वजह से उन्होंने पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया. ठीक है. एंड दिस सिंपली रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इजी वन कि किसने किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek. डेड सेल्स आर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक.
First discovery of cell is also done by Robert Hooke, and then Robert Brown, he discovered nucleus. Okay, am I clear? Yes, ma'am. Okay, आगे बढ़े. Yes, ma'am. Okay, so cell theory. बेसिक में मेनली सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी से रिलेटेड तीन मेन साइंटिस्ट का नाम आता है. थ्री मेन साइंटिस्ट आर देयर, बट थर्ड वाले से पहले दो मेन साइंटिस्ट का आता है, एंड उन पे क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, सो सेल थ्योरी सबसे पहले दिया गया था मैथियस स्क्लेडिन. मैथियस स्क्लेडिन, एंड पहले मैथियस स्क्लेडिन की बात कर लेते हैं, एंड थियोडर सैचुआन, एंड थियोडर श्वान या सैचुआन, कुछ भी कह लो. ठीक है, सो इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी थी. एंड क्वेश्चन आर ऑल्सो बीन आस्क्ड कि ये मैथियस स्क्लेडिन क्या थे एंड थियोडर सैचुआन क्या थे. सो मैथियस स्क्लेडिन क्या थी? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे. ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट, एंड इन्होंने पढ़ा था 1838 में. 1838 में इन्होंने प्लांट के सेल्स को पढ़ा था, एंड ही हैज गिवन द रूल दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, और इनका यही स्टेटमेंट मीन्स कि प्लांट्स विच आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम सॉरी, आर नॉट अराइज्ड फ्रॉम, ये तो तीसरे ने दिया था. ओके, लेट मी, यस, सी मैथियस स्क्लेडिन, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो रिमेंबर. एंड इनका स्टेटमेंट था दैट प्लांट्स हैव बीन अराइज्ड या मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, एंड फ्रॉम वहां से, फ्रॉम द फाइबर्स या फ्रॉम द टिश्यूज. ठीक, एंड दीज कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ होल लॉट ऑफ सेल बंडल्स. ठीक है, सो इनका स्टेटमेंट था प्लांट्स आर मेड up of different types of cells. Okay, यहाँ पे plant cells रहना चाहिए. Let me write again. Plant तो composed of cell हो जाएगा ना. Plant cells are made up of different type of cells. ठीक है, और ये cells क्या करते हैं बाद में? These cells form tissues या tissue, या तो tissues के जगह पर लिख सकते हो cell bundles. Cell bundles are actually called as what? Tissues. So no problem will be there. He gave this statement, and this Theodor Schwann के किए थे. He is a zoologist. He is a zoologist and British zoologist थे ये. Actually, this much was not important about them, but both of them in 2 or 3 years before, in it only about them has been asked कि ये zoologist थे या botanist थे और किस year में इन्होंने दिया था, because the theory they gave are more or less in the same year. He gave the theory in 1838, he gave this theory in 1839. So more or less same year में उनका study था, and he gave 3 important statements. Like Theodor Schwann, being he is a zoologist, but उन्होंने बहुत अच्छा एक थ्योरी और दिया था प्लांट्स के बारे में. तो पहला थ्योरी तो उनका ये था कि प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग. So plasma membrane क्या है? It is the most unique feature of every cell. ठीक है, is feature या unique feature of every cell. अब चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, any cell is composed of what? Outermost covering, and that outermost covering is called as what? Plasma membrane. He gave the first statement. Then second statement, वो zoologist थे, but इन्होंने क्या बताया कि cell wall is a special feature of what? Plant cells. Plant cells are having an extra covering which are called as cell wall. Then third statement, organisms are made of cells and its products. So these two scientists have given their theories or statements. Matthias Claden, being a German botanist, he told that plant cells are what? They are made of many kind of cells, and these kind of different kind of cells form what? सेल बंडल्स, जिसको आज हम लोग टिश्यू बोलते हैं. एंड थियोडर श्वान क्या थे? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एंड इन्होंने अपनी थ्योरी 1839 में दी थी. एंड इनका 3 मेन फेमस स्टेटमेंट है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत दिस वन फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ एवरी लिविंग सेल. ठीक,
जो भी लिविंग सेल होगा, हर एक लिविंग सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर किया रहेगा. देन being a zoologist, he gave a statement about botany, or he gave a statement about plants. Plants what? That cell wall is a special feature that are only found in plant cells. Then he gave a theory about in general about the cells, that all the cells are composed of cell and its product. लेकिन अब देखो दोनों ने ही सेल का थ्योरी या स्टेटमेंट दिया है, बट नन ऑफ देम, हियर आई कैन राइट, none of them defined or said about how these cells are about how these cells are formed. ये सेल प्रोडक्ट्स कहाँ से बन रहे हैं या कैसे बन रहे हैं, इन्होंने इन दोनों में से किसी ने नहीं दिया. सो अब आएगा ये थर्ड रोल, यानी कि रोल ऑफ अ थर्ड साइंटिस्ट, रुडोल्फ विर्चो, जो कि फेमस हैं. 1855 में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था. फॉर द फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लेन्ड कि जो सेल है वो डिवाइड होता है, फिर उससे दो नए सेल्स बनते हैं, एंड इन सिमिलर वे डिवीजन ऑफ द सेल के थ्रू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नए सेल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. सो अब नए किसका रोल आएगा? मैथियस, सॉरी, रुडोल्फ विर्चो का ना. रुडोल्फ विर्चो 1855 में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया that, let me write it first, okay. First explain that cells are divided and then the new cells are formed from the division of existing cells. और इसको इन्होंने बोला omnis cellula e cellula. दिस वन मार्क कर लो, द स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. तो रुडोल्फ विर्चो, फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टडीड द सेल्स एंड देन ही एक्सप्लेन दैट सेल्स आर व्हाट दे आर डिवाइडेड, एंड because of this division only new cells are formed from the what existing cells, like this, कि एक कोई बड़ा सेल है और ये सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, तभी दो छोटे सेल्स बनते हैं. Okay. He was successfully able to explain how the new cells are formed from the pre-existing ones. Okay. Now the final cell theory will become final cell theory. अब क्या क्या बनेगा final cell theory में? You tell me, Sana. Final theory. Okay, final theory of what? कहाँ गया ये? Final theory of cell. First point क्या बनेगा? All the living organisms are composed of cells and product of cells. So all the living organisms are composed of cells and products of cell. First, then second, all the cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. तीसरा क्या बनेगा? जितने भी एक्टिविटीज हैं वो क्या है? एक्टिविटीज ऑफ ऑल द सेल्स आर आउटकम ऑफ द क्या कहते हैं, आउटकम ऑफ द टोटल एक्टिविटीज और द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स. मतलब कि लाइक इफ आई एम स्पीकिंग और इफ आई एम राइटिंग, सो ये सिर्फ मेरे हाथ का या मेरे मुंह का कमाल तो है नहीं. Inside our body, each and every cell is working towards that process. So activities of any organ is what? Is the outcome of what? Sum total activities and interaction of each and every cells which are present in that organism. ठीक है. हर एक बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितना भी सेल है, हर वो सेल अपने अपने फंक्शंस पूरे कर रहा है, सो दैट वी आर एबल टू शो आवर आउटकम. चाहे वो हमें सोचना है, चाहे वो हमें बोलना है, चाहे वो हमें कुछ भी करना है, उस चीज के पीछे हर एक सेल काम करता है. ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Okay. Activities of an organisms are outcome of the activities of outcome of the sum total of activities and interaction of its constituent cells.
ठीक है, थर्ड वन इतना लंबा सेल थ्योरी के याद करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी एक्टिविटी कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है दैट इज ओनली बिकॉज of the total effort of each and every cells which are present in that organism's body. Okay, so these are what they are final theories of cell. अब सेल का हम लोग क्या क्या देख चुके हैं कि व्हाट अ सेल इज कॉल्ड, व्हाट आर द बेसिक definition of the cell, then what are cell theories, what are the discoveries of cell. अब एक हेडिंग दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी कि ओवरव्यू ऑफ सेल. ओवरव्यू का मतलब क्या है कि मतलब in our class 9th or 10th you must have done the experiment of onion peel cell. Have you done that to study the cells present in the plants? मैम ओनली प्रैक्टिकल में लिखे थे, करवाया नहीं गया था. Okay, so एनिमल सेल्स की स्टडी के लिए ह्यूमन चीक सेल्स का यूज होता है कि स्टडी करो, एंड प्लांट्स के लिए अनियन पील सेल्स. सो इन दो सेल्स ये बेसिक एंड इजीली अवेलेबल काइंड ऑफ क्या है सेल्स हैं जो तुम्हारे कहीं भी मिल सकते हैं और कहीं भी स्टडी कर सकते हैं. सो ओवरव्यू में यू कैन सी कि एक सेल की स्टडी ही होती है मोस्टली कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं. सो ओवरव्यू ऑफ सेल में पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं अनियन पील सेल कैसा था. अनियन पील सेल डू यू रिमेम्बर कैसा था? ये माना जाता है क्या टिपिकल प्लांट सेल ये था, और एक था ह्यूमन चीक सेल. ये क्या है? टिपिकल एनिमल सेल है, ह्यूमन चीक सेल. हर स्कूल के प्रैक्टिकल्स में ये होता ही होता है, ह्यूमन चीक सेल. ये क्या है? टिपिकल एनिमल सेल. ठीक, अब अनियन पील सेल इसका डायग्राम कैसा रहता है? लाइक दिस, और इसके अंदर ये. सो दिस वन इज व्हाट? इट इज सेल वॉल, and this one is what? It is plasma membrane, and this one is what? Nucleus. यहाँ पे भी क्या था? ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था. इसमें सेल वॉल नहीं होता, तो दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज न्यूक्लियस. इट इज व्हाट? टिपिकल सेल. ठीक, टिपिकल सेल स्ट्रक्चर्स अबाउट अनियन सॉरी प्लांट का एंड एनिमल्स का. सो बेस्ड ऑन दिस न्यूक्लियस ओनली, बेस्ड ऑन दिस न्यूक्लियस कि कितना न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियस सही है, या न्यूक्लियस प्रिमिटिव है या न्यू है. So based on this nucleus only, cells have been divided into what? Prokaryotic cell and eukaryotic cell. A prokaryotic cell and eukaryotic cell कैसे division है? Types of cell. Types of cell कौन कौन सा टाइप है? पहला है प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल. ब्रेक करो. प्रो मतलब क्या? प्रिमिटिव या बिफोर. प्रिमिटिव या कह लो बिफोर. कैरियोटिक मतलब क्या? कैरियन. कैरियन इज व्हाट? न्यूक्लियस. कैरियन इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. यानी कि जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का कोई वेल डिफिनेशन नहीं है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस एब्सेंट. एंड यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा? यू मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? न्यू. न्यू या ट्रू. ट्रू मतलब सच्चा, मतलब यूकैरियोटिक मतलब सच्चे वाले जो सेल होते हैं, अच्छे वाले. ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. कैरी ऑन अगेन वही कैरी ऑन मीन्स वही न्यूक्लियस. सो ट्रू मीन्स एडवांस वन, या यू मीन्स का ट्रू, यानी कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सच्चे वाले सेल हैं, यानी कि अच्छे से प्रॉपर डिफाइंड सेल्स इनको कहते हैं, यूकैरियोटिक वाले को. ठीक, इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज सेल्स. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी कि न्यूक्लियस के तरह से देखा तो इसमें न्यूक्लियस का डिफरेंस आपसे डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसमें. बट कॉमन थिंग्स क्या है दीज में? कॉमन थिंग्स क्या है इन दोनों में? पहला कॉमन थिंग क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्या? present in every cell. So plasma membrane दोनों में मिलेगा. Then when you will study ribosomes, you will also found the ribosomes दोनों में मिलते हैं, इसमें भी और इसमें भी. And the cytoplasm. Cytoplasm means what? Main arena, और कह लो main area of every cell. Cytoplasm is what? Main arena या area of cellular activity. Activities.
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म. So plasma membrane, ribosomes or cytoplasma, common things is what, prokaryotic cells and eukaryotic cells. लाइक अभी कोई एक सेल बना दें तो इसमें जो ये लिक्विड 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 वाला पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म. और इसी एरिया में क्या रहेगा, बाकी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे जहाँ पे सारा फंक्शन होता रहता है. तो जितने भी सेल की एक्टिविटीज होते हैं वो कहाँ होंगे, इस सेल में होंगे. ठीक है, ये जो लिक्विडी मटेरियल है ये क्या है, सेल साइटोप्लाज्म है. ठीक, लिक्विडी मटेरियल ये क्या है, साइटोप्लाज्म. सो इसी में क्या हो रहा है, सारा सेल का फंक्शन है. कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अपना फंक्शन करेगा. सो कॉमन थिंग्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म. एंड डिफरेंट थिंग्स आर व्हाट, एंड दैट न्यूक्लियस किसी में वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस किसी में वेल डिफाइंड नहीं है. अभी बहुत सारा लंबा डिफरेंस है विच वी विल स्टडी लेटर. ये राइबोसोम्स कर लो, राइबोसोम्स, and this is what, plasma membrane. Any doubt till here? No, ma'am. Okay, so we will see the slide now. After that I will start the shape and sizes. देखते हैं सेल में क्या क्या है. ठीक है, an organism consists of one or more cells. Accordingly there are two type of organism, unicellular composed of single cell, multicellular composed of many cells. Okay, unicellular composed of single, multicellular composed of many cells. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. अब like I have explained also कि जितने भी unicellular cells हैं that are also capable of independent existence. क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, सेल एक बेसिक लाइफ परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है. बाकी सारी चीजों को भी क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, बिकॉज उनके पास क्या है, सेल के एक्टिविटी परफॉर्म करने जैसे कैपेबिलिटी नहीं है. ठीक है, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय टू जर्मन साइंटिस्ट. अब यहाँ पे टू जर्मन साइंटिस्ट जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि एक जर्मन थे और एक ब्रिटिश. तो मैंने पूरा ही फॉर्म्ड बाय टू, नहीं, वन जर्मन साइंटिस्ट एंड वन ब्रिटिश वन. ठीक है, कौन जर्मन थे कौन ब्रिटिश थे, लेट मी रीड अगेन. मैं तो ये वन, ये क्या थे, ब्रिटिश थे, और ये क्या थे, मैथ्यूस स्क्लेडिन, जर्मन थे. चलो ठीक, जर्मन साइंटिस्ट हो गए मैथ्यूस स्क्लेडिन और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे थियोडर श्वान. इंडिपेंडेंटली वो लोग अपने अपने जगह पे अलग अलग चीजों को लेके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अराउंड द सेम ईयर मोर और लेस. इनका 38 में स्टेटमेंट आया था, इनका 39 में. ठीक, 1838 examined a very large variety of plant tissue and observed that plants are composed of different kind of cells. About the same timing, 1839, closely studied different type of animal cells and found that animal cell have very thin outermost layer known as plasma membrane. See, ये slide का कोई statement मत ध्यान दें. Pay attention to this, what I have written, this one. ये ठीक है कि what are their statement, what they exactly told about. He told about कि plant cells के टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं, and he told about कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होगा और सेल वॉल यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, और ऑर्गेनिज्म सेल से बने रहते हैं और उसी सेल के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक, नेक्स्ट सेल थ्योरी ऑब्जेक्शंस क्या कहते हैं. सेल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन. देखो यही चीज है, ये दोनों ने सेल थ्योरी दिया तो था, लेकिन दे फेल टू एक्सप्लेन दैट हाउ दीज सेल्स आर फॉर्म. ये तो बता दिया कि इसी का प्रोडक्ट है, लेकिन कैसे फॉर्म हो रहा है ये नहीं बताया था. ठीक, तो इसको बताने के लिए कौन आया था, रुडोल्फ विर्चो इन 1855 मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लेडन एंड शॉन and explained in his statement that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells. Omnicellular ecellular. Direct question क्या आता है, the statement omnicellular ecellular has been given by. ठीक है, many university entrance exam में ये question direct statement में आता है. तो कौन दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने. नाउ सेल थ्योरी क्या क्या स्टेट करती है, ऑल द सेल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल्स शो सिमिलैरिटी इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. यही सेम चीज मैंने भी लिखा है इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिमिलैरिटी एंड केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स कि जितने भी सेल हैं, कोई भी एक्टिविटी कोई भी सेल परफॉर्म कर रहा है किसी किसी सेल में, क्या है, हर एक सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सो दैट अ होल ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म. देन स्ट्रक्चरल आउटलाइन ऑफ अ सेल. स्ट्रक्चरल आउटलाइन मीन्स कि बेसिक क्या क्या चीजें सेल में होना ही होना है. क्या क्या होना है, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है, ब्रेन ऑफ द सेल है विच इज स्फेरिकल इन शेप, इट्स नंबर कैन बी वन और मोर पर सेल. देन साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि चाहे प्रोकैरियोट सेल हो चाहे यूकैरियोट सेल हो, जो दो या तीन चीजें हैं वो होना ही है. ठीक,
आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन यानी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग बाउंड्री ऑफ विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ आयन मॉलिक्यूल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म क्या है, मेन अरेना है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होती हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज हो, हेरिडिटरी मैकेनिज्म्स हो, एंड गैसेस एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, सब उस सेल के सेलुलर एरिया के अंदर ही होता है। यूकैरियोटिक सेल बहुत सारी चीजें कंटेन किए रहते हैं, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कुछ नहीं होता, इसके पास क्या होता है, सिर्फ राइबोसोम होता है। ठीक, देन साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, ओके लेट मी एक्सप्लेन साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल में छोटा सा टॉपिक है ये भी, ये वैरी करता है। साइज ऑफ सेल वैरीज, मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म में छोटा रहेगा, किसी ऑर्गेनिज्म में बड़ा रहेगा, किसी किसी में बहुत बड़ा रहता है। अब इतना भी नहीं कि तुम अपने नेकेड आई से देख सकते हो। सो स्मॉलेस्ट सेल इज व्हाट, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। एंड माइकोप्लाज्मा का साइज क्या दिया है, 0.3 माइक्रोमीटर। अब इन माइक्रोप्लाज्मा ओनली पीपीएलओ आता है। ठीक है, पीपीएलओ ये है मोस्ट स्मॉलेस्ट सेल, यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। इसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक, इन डायमीटर। एंड माइक्रोप्लाज्मा इन जनरल क्या है, ये स्मॉलेस्ट सेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल्स। जब ऑप्शन में दिया रहे कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट सेल या डायरेक्ट क्वेश्चन रहे तो यू विल ऑलवेज राइट माइक्रोप्लाज्मा। बट अगर क्वेश्चन है कि पीपीएलओ ऑप्शन में है, so you will always tick mark on PPLO because PPLO is a part of mycoplasma only। एक वैरायटी है माइक्रोप्लाज्मा की जिसमें पीपीएलओ आते हैं, जिनके साइज 0.1 माइक्रोमीटर है, यानी कि वो माइक्रोप्लाज्मा के इन जनरल से भी छोटे हैं। ठीक, सो लॉन्गेस्ट सेल ये हो गया, अरे सॉरी स्मॉलेस्ट सेल। अब आता है लॉन्गेस्ट सेल्स की बारी। लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होंगे, ये सब तो बचपन वाले क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं ये सब। लार्जेस्ट सेल्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेल्स, these three you have to remember, ostrich egg, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन तीनों से कि which is the smallest cell, which is the longest cell, which is the largest cells। now average size of bacteria वो कितना दिया रहता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक, और एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी दिया है इन एनसीईआरटी, 7 माइक्रोमीटर। बट अब एवरेज साइज और टिपिकल दो अलग अलग हो जाएगा। टिपिकल साइज ऑफ बैक्टीरिया ये कितना हो जाएगा, 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन गिवन यू विल राइट द आंसर। या टिपिकल साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल कितना होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ वायरसेस कितना होता है, वायरसेस 0.02 से लेकर के 0.2 micrometer। Okay, so these are what various sizes of different kind of cells। So कभी कभी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में देता है, डायरेक्ट दिस फिगर, ये फिगर देख के ही लेबलिंग के थ्रू ही पूछ लेता है कि व्हाट इज द टिपिकल साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, या व्हाट इज द साइज ऑफ पीपीएलओ, व्हाट आर द साइज ऑफ वायरसेस और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये फिगर के थ्रू ही डायरेक्ट देके पूछ सकता है। ओके, नाउ वेयर वाज आई, this one, yes। सेल का साइज हो गया। नाउ शेप्स लेट मी टेल यू फ्रॉम द फिगर ओनली। सी साइज ऑफ सेल वी हैव ऑलरेडी सीन, एग्जिबिट इनलेस इन वेरिएशन, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, 3 से 5 अप्रोक्सीमेशन साइज भी हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड बैक्टीरिया आर अप्रोक्सीमेटली 0.3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। स्मॉलेस्ट वन क्या है, माइकोप्लाज्मास या पीपीएलओ, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन ब्लड सेल्स का दिया है 7 मीटर, नर्व सेल्स का दिया है लॉन्गेस्ट सेल्स जो कि 90 to 100 सेंटीमीटर रहते हैं। क्यों, क्योंकि टिप टू तो वहां पूरा जाना है नर्व सेल्स को, तो वो क्या है सबसे लंबे सेल्स माने जाते हैं। नाउ शेप में क्या है, ऑल्सो वेरी इन देयर शेप्स। अब देखो यहाँ इसी फिगर में देखो, दीज रेड ब्लड सेल्स आर व्हाट, दीज रेड ब्लड सेल्स आर ओवल शेप्स। ठीक है, फिर ओवम सेल्स को देखो, ओवम सेल्स क्या है, ये डिस्क लाइक शेप है। फिर उसके बाद ये स्पर्म सेल्स देखो, स्पर्म सेल्स आर स्पाइरल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओवम सेल्स क्या है, ये डिस्क लाइक है, डिस्क लाइक है ये। फिर जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या है, राउंड है, दिख ही रहा है, राउंड भी है एंड सीधे बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, बाई कॉन्वेक्स।
देन ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स क्या है, एज फ्रॉम द फिगर यू कैन से लॉन्ग है, लॉन्ग है. फिर स्मूथ मसल सेल्स क्या है, ये डिफरेंट ओवल काइंड ऑफ शेप्स हैं, ओवल काइंड. ये क्या है, स्पाइरली भी है, स्पाइरल प्लस थ्रेड लाइक है, थ्रेड लाइक. बोन सेल्स क्या है, ये ब्रांच्ड है, देखो. नर्व सेल्स भी क्या है, ब्रांच्ड है, इनकी ब्रांचिंग भी दिख रही है. सो cells are formed of various shapes and sizes according to the need and according to the function they are doing. ठीक है, जो जो काम करते रहते हैं उस काम के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं. So that is why they are having change in their shapes and sizes. So I'll keep up to here today. Any doubt? From next class we will study about the types of cell, that is prokaryotic or eukaryotic cells. Any doubt in this class today, Sana? No, ma'am. Okay, this chapter is very easy. I think it will complete in 4 or 5 lectures. Okay, so bye for today. I'll share